पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। जेता जियो बिन सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, वो तीरथ भविया ते तो लविया। वो भेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, वो दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पैरै ऐनस कैरै, मौन विगुता क्यों जागै गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, अल मल खाई सिर शाही पाई। मूरख अंधे पत गवाई, बिन नाम एक सिथाए न पाई। रह बेबाणी बड़ी मसाणी, अंध ना जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते ने केवल मैं शब्द जलाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते ने केवल मैं शब्द जलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। इस पावन अस्थान ते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी की जो लड़ीवार कथा चल रही है, इसके तहत आसा की वार की 9वीं पौड़ी के नाल जो दूसरा श्लोक है, गुरु नानक देव महाराज जी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। इन्हां पावन अमृत वचनां की कुछ विचार आप जी ने कल श्रवण किए थे। इस पावन शब्द के जो बाकी अमृत वचन ने, आओ सतगुरु जी बख्शिश करन पावन अमृत वचनां की विचार कर सकीए। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने, मनुख जेकर परमात्मा की भगती छड्ड के, नाम जपना छड्ड के होर होर अडंबर करता है, तो पातशाह जी कहते फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ खुआरी ही प्राप्त होंदी है, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होंदी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के इन्हां पावन अमृत बचनां की जो कल विचार हुई सी, आओ संखेप रूप दे विच उन्हां बचनां नाल भी सांझ पा रही है। पातशाह फरमान करते ने, महला पहला।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਨਾ ਹੋਰ ਕੜ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਝ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਖਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋਂ ਲਵਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ। ਬੜੇ ਭੇਖ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਲੈਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਣਾ ਕਰ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਗਵਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਭਾਏ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਗੇਰੂਆ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਲਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤ।
बड़े लोगों नूं मारिया लुटिया, पर बाणा साधुआं वाला सी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के तुलंबे नगर का जिक्र है पाकिस्तान दे विच जो इस समय। तो उन्हें देखिया जदों गुरु नानक देव महाराज जी का चेहरा, कहता बहुत नाड़ बंदा आया है, अज माला माल हो जावांगे। सतगुरु पातशाह जी के कोलों ने कई यतन किए, किसी तरह इन्हों भोजन छकावां, नशा दे के सवा देवां ते फिर इन्हों मारां लुटां, पर गुरु नानक पातशाह जी ते उहदा कोई जोर नहीं चलिया, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज उहदे अंदर की गल नूं पढ़ रहे सी, जान रहे सी भी की चाहुंदा है। जदों अमृत वेला होया जागदा रहा सारी रात, कोई चारा नहीं चलिया। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी फिर सूही राग दे विचों ते शब्द उचारण कीता, सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथै लेखा मंगीए तिथै खड़े दसन। पातशाह कहते सज्जन असल विच ओह ने जिहड़े इत्थे भी ते अगे भी सहायता करते हैं, जिहड़े बाहरों भेख बना लैंदे ने, इत्थे भी कष्ट मिलता है, अगे भी भारी कष्ट मिलता है। बहुत दुख पाया दूजा भाया, जिन्हां नूं रब नूं छड्ड के होर होर कर्म करने भागे चंगे लगे, उन्हां नूं फिर किन्ना कुछ दुख मिलता है, गिणती नहीं है। बहुत दुख पाया दूजा भाया, जिन्हां नूं दूजा चंगा लगा। दूजा कौन है? संसार, बा पखंड, कर्म कांड। महाराज कहते बस्तर ना पैरै ऐ न सकैरै। कल भी बेनती की सी, जिहड़ा साडा लोकां दा पैमाना है ना किसी नूं साधु बनाउण दा, वो बड़ा छोटा है। कोई तन दे बस्तर त्याग देवे, आपां कहंदे आ ये साधु है जी, वेखो इहने त्याग कर दिता बस्त्रां दा। कोई पैरां विच जोड़ा ना पावे ते आपां हत्थ बनदे आ भी ये ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। वैसे किसी गरीब के तन ते वस्त्र ना होना, आपां उहनूं वस्त्र लैके देंदे आ भी भरावा तेरे कोल वस्त्र नहीं है, गर्मी सर्दी पा लै। पैरां विच जुत्ती नहीं, जुत्ती लैके दे देंदे आ, पा लै। पर कोई धर्म के नां ते त्याग देंदा ते आपां कहंदे आ साधु। गुरबाणी ने इस गल नूं नहीं मन्निया, क्योंकि महाराज कहंदे साधु कौन है? साधु वो है जिसने वाहिगुरु के नाम नूं जपना कीता है। भागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, प्रवान गणी से ये आए सफल तिना के कामा। महाराज कहते बस्तर ना पैरै, बस्तर पैरने छड़ देते। ऐनस कह रहे दिन रात कष्ट चलिया शरीर दे उपर। मौन विगूता क्यों जागै, गुर बिन सूता। किसी ने मौन धारण कर लिया। घट बोलना चंगी गल है, पर मौन धारण कर लेना, किसी नाल कोई विचार चर्चा ही नहीं करनी। महाराज कहते ये भी खुआर हुंदा है। भाई गुरदास जी ने इन्हां सारे कर्म कांडां ते एक पौड़ी लिखी है। उन्होंने सारे कर्मां दा गल कीती। कहते मिलै जे तीरथ नहाते हाँ डड्डां जल वासी। जे रब इदां मिलदा होवे तीर्थां दा इशनान करके ते सारे डड्डूआं नूं रब मिल जाना चाहिदा सी, मच्छियां नूं रब मिल जाना चाहिदा सी। मिलै जे तीरथ नहातियां डड्डां जल वासी। वाल वधाया जे मिलै बड़ जटां पलासी। जे जटावां बनाउण नाल रब मिलदा हुंदा, बोड़ दियां लंमियां लंमियां जड़ियां ने जटां हो जांदियां ने, लमक जांदियां ने। तुसीं वेखियां होणीआं ने, पुराना जिवें जिवें बोड़ हो जावे ना, उहदियां जटावां थल्ले लमक जांदियां ने। जे इदां रब मिलदा होवे ते फिर उहनूं भी रब मिल जाना चाहिदा है।
नंगे रिया जे मिलै, भाई गुरदास जी लिखते ने, नंगे रिया जे मिलै बन मिरग उदासी। वो भाई जे बस्तर त्यागण नाल रब मिलदा हुंदा ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਗੇ ਰਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੈ ਬਣ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੜ ਹਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਨ ਵਿਗੁੱਤਾ ਮੋਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਖਲਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਨ ਵਿਗੁੱਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਗੁੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ, ਇਹ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਜੀ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ।
शुरू करन लगा है कौतक की वरताया। बाहरों एक सेवादार भज्या है, कहते महाराज अपने शहर नूं अग लग गई। दौड़िया अजे वो दस ही रहा सी, एक पिछों होर आ गया, कहते जी अग तां ड्यूटी तक आ गई है। ये आउंदा होया अपनी एक सोटा डंगोरी जिहड़ी है उत्थे रख आया सी, नाल उहदे कपड़ा सी। हुण रब की गल करन लगा, एक मुनी आसन तो उठ खलोता। की गल हो गई? कहते जी ड्यूटी तक आग आ गई है, अग आ गई है, मैं तो चलिया, मेरी डंगोरी उत्थे पई है। राजा जनक कहन लगा, इन्ना तप करके भी जी डंगोरी का मोह नहीं छड्डिया, लंगोटी का मोह नहीं छड्डिया, तू काहदा मुनी, तू काहदा साधु, भज जा इत्थों। भजाता गया वापस, पिता नूं जाके दस्सिया भी ये गल हो गई। वो कहंदे फिर तेरा गुरु उही बन सकता है, बस उत्थे जा। कहंदा करा की? कहंदे वो रोज़ साधुआं नूं लंगर छकांदा है, अपना नेम करन तो बाद भजन करन वालियां नूं, बंदगी करन वालियां नूं फिर आप सकदा है। ते अपने महल दे पिछवाड़े वो जूठियां पतलां चुक के, पहला उही बर्तन हुंदे सी आम करके, जूठियां पतलां चुक के उत्थे सटदा है। उत्थे जाके खड़ जा, जुगती दस दीती, वो प्रसन्न होवेगा, फिर तेरे ते गल बनेगी। हुण योग साधना ते पहला ही जानदा सी। साखीकार कहंदे ने एक लत्त दे भार खड़ गया, प्राणा नूं रोक के 12 साल इहदे ते जूठियां पतलां गिरदियां रहियां। 12 साल ते पहला जंगल विच तप कीता, 12 साल हुण एक लत्त दे भार खड़ा है, योग साधना दे द्वारा जूठी पतल उत्ते पैंदियां रहियां। गुरबाणी विच इहदा जिक्र आया, जूठन जूठ पई सिर उपर, खिन मनुआ तिल ना डुलावै गो। जनक जनक बैठे संघासन, नो मुनि धूर लै लावै गो। 9 मुनि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੂਠਣ ਜੂਠ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मौन बगुता मौनी हो गया। मुनि कहते ने जिहड़ा मौन धारण कर ले, किसी नाल गल ना करे। ये 9 मुनि उन्हां विच ही आउंदे ने। पर महाराज कहते वेखो सुखदेव मुनि किन्ना तप कीता और एडे वड्डे महात्मा दा पुत्र है व्यास ऋषि जी का, जिन्हां ने वेद रचे ने, होर ग्रंथ रचे ने। वो मौनी हो के भी खुआर ही हुंदा है, क्योंकि जब तक नाम नहीं जपदा गुरु की मत लैके। क्यों जागै गुर बिन सुता, माया मोह अविद्या की निंदर विचों कदे नहीं जागेगा, भावें कोई किन्नी भी साधना कर लवे, जदों तक सच्चा गुरु नहीं मिलता। तो हुण आपां अपनी गल लै लईए, सानू सच्चा गुरु मिलिया, साडे माड़े भाग असीं गुरु कोलों गल नहीं लै रहे, गुरु कोलों खजाना नहीं लै रहे, गुरु की बख्शिश नहीं लै रहे। एक वो लोग जिन्होंने सच्चा गुरु नहीं सी मिलता, वो हर एक साधना करन नूं तैयार सी। सानू मिल जावे कुछ, सानू मिलिया होया है ऐसा गुरु जो सारा कुछ दे सकता है, रब नाल मिलाप करांदा है। असीं हुण सुत्ते पे हाँ, गल गुरु की गल नहीं मनते। पग उपे ताड़ा अपना किया कमाना, जोड़ा पाना छड्ड दिता। कहंदे तां जी महात्मा ने जोड़ा पाना छड्डता। वेखो किन्ना वड्डा महात्मा है, साडा जिहड़ा पैमाना किन्ना छोटा है। पातशाह कहंदे पैरां विच जोड़ा पाना छड्डता, कंडा चुभिया जां कुछ होर हो गया, वो फिर बड़ा दुखी होया। अपना किया कमाना, भाई अपना कीता होया कमाया जिहड़ा उहदा फिर दुख मिलदा है। जे नंगे पैर चलांगे रोड़ चुभणगे, कंडे चुभणगे, होर बड़ा कुछ हो जाता है। पातशाह कहते अल मल खाई सिर शाई पाई। अल मल सारी गंदगी, अल का अर्थ वैसे ताज़ा भी कहते हैं। एक ना घोरी साधु होंदे ने हिंदू मत दे विच, वो की कहते हैं विष्टा खांदे ने।
गंदगी खाते ने, जो लैटरिन है ना लैटरिन ये खाते ने, उन्होंने घोरी साधु आख्या जाता है। अलमल खाई सिर शाही पाई, सिर वे सुआह पा के रखते ने, इशनान नहीं करते, मैले रहंदे ने, गंदगी विछा वो खाते ने। मूर्ख अंधा पत गवाई, ये मूर्ख जीव इस तरह के जो अध्यात्मक तौर पर अन्ने ने, पत गवा ली। वेखो कितना सोहना जीवन रब ने दिता सी। महाराज कहते नाम नहीं जपिया तो इस तरह के कर्मां विच पै गए। बिन नाम है किछ थाए ना पाई, नाम तो बिना होर कुछ थां नहीं पैंदा। जो मर्जी कोई करी जावे, ये नाम ही है जिसने सानू बचाना है, साड़ी रखिया करनी हर थां ते। नाम तो बिना होर कोई भी कर्म मनुख की सहायता नहीं करेगा। रह बेबाणी मड़ी मसाणी, बेबान जंगल बियाबान। मड़ियां मसाणा विच जाके रहिंदा है, जंगलों विच जाके रहिंदा है। परिवार छड़ दिता, संसार छड़ दिता, कारोबार छड़ दिता। अंध ना जाने फिर पछताणी, ये अन्ने मनुख ने जानिया नहीं नाम की महिमा नूं, परमात्मा नूं नहीं जानिया, फिर पछतांदा है। जदों समा लंघ जाता है ना उदों पछतांदा है। जिवें इहदा एक मोटा जिहा प्रमाण लै लीए आपां, बच्चे नूं माँ प्यो कहंदे ने पढ़ लै, पढ़ाई कर लै, खेडां विच मस्त रिहा, गल नहीं मनी, बड़ा समझाया, मारिया कुटिया भी, पर वो नहीं सी समझदा। समा लंघ गया पढ़ाई करन दा, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ कोई भैन भाई पढ़ाई करके वड्डा अफसर बन गया, पर ਉਹਨੇ नहीं सी पढ़िया तो हुण ਉਹ ਵੱਡਾ भैन भाई ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ अपने सोहणे ढंग नाल जीवन जी रहा। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ भी ये दिहाड़ी ते जांदा ते नाले रोंदा है। ਉਹ समय नूं याद करदा, माँ प्यो कहंदे सी पढ़ लै चंगा रहेगा, पढ़ लै चंगा रहेगा, नहीं पढ़िया। इस तरह आपां नूं गुरु पातशाह की कहते, भाई उठो अमृत वेले बाणी पढ़ लो, नाम जप लो। माता पिता ना गुरु अपना, आपां नलैक बच्चिआं दी तरह नहीं पढ़ते, इस पढ़ाई वाल ध्यान नहीं देंदे। फिर अंत समय जीव पछतांदा, जदों समा लंघ जाता है फिर रोंदा भी गुरु तां कहंदा सी आ जा बैठिया कर मेरे कोल, जपिया कर नाम। ये कहंदा मेरे कोल टाइम ही नहीं है। होर थावां ते जाके वेखो मनुख कई घंटे बैठा रहिंदा है। निंदिया चुगली करनी होवे तां बड़ा समा मिल जाता है, पर कथा कीर्तन सुनना होवे, बाणी सुननी होवे, पढ़नी होवे, आपां बहाने लाण लग जाते हैं। हुण महाराज कहंदे सतगुर भेटे सो सुख पाए। जिहड़े सतगुरु नाल अपनी भेंट कर लैंदे ने, मिल जाते ने सतगुरु नाल, भाव सतगुरु की गल मन लेंदे ने, वो फिर सुख पा लेंदे ने। हर का नाम मन वसाए, किहड़ी गल मनी गुरु की? नाम जपना, नाम नूं मन विच वसाना, नाम नाल जुड़ना। नानक नदर करे सो पाए। महाराज कहंदे नाम जपण वालिया, बाणी पढ़न वालिया, एक गल चेते रखी, नाम वाहिगुरू की किरपा नाल तेरे मन विच वसना है। इस करके हंकार ना करी। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे तेने केवल होमै शब्द जलाए। दुनिया दियां आसां छड़ दित्तियां, किसी बंदे की आस नहीं। अंदेसे जिहड़े मन दे फिकर चिंता सन, महाराज कहंदे ने केवल दा अर्थ निर्लेप हो जाना। ना किसी बंदे की आस, ना कोई फिक्र रखिया भी मेरे कारज आपे मेरा गुरु करेगा। इन्ने भरोसे नाल बाणी पढ़ी, नाम जपिया, बंदगी कीती, होमै शब्द जलाए ते गुरु के शब्द की कमाई द्वारा होमै नूं साड़ दिता, खत्म करता। ਉਹਦੇ ते फिर बख्शिश हुई, वो भगत बन गया। वो भगतां की की अवस्था है, वो महाराज अगे पौड़ी विच दस रहे ने। वो आपां आउण वाले समय अंदर विचार करांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।